Hello everyone, welcome to Learn English with Roshan Adam. In earlier videos, we have revised the past tense and present tense. This will be the video of future tense, the revision series of tenses which are very important in spoken English. Tense is the structures which forms the sentences. If you want to speak in future tense, if you want to speak the promises, determination, or the thing for futurity which you will do in the future, for that you have to learn about future tense. Future tense is also of four types, consist four types: future indefinite, future continuous, future perfect tense, future perfect continuous tense. These will be the four types of in future tense. As in earlier videos of past tense, you have watched the past all types of sentences, how you can form the sentences in simple, interrogative, negative, and the future हेल्पिंग वर्ब यूज़ ऑफ विल, शॉल, विल बी, शॉल बी कर रहे होंगे या फिर जो हो चुकेगा, मीन्स द थिंग्स विच यू विल डू इन फ्यूचर. जो आपको ये सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि कोई काम वो कर रहा होगा तो कौन से टेंस में होगा, दैट विल बी इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. सो वी विल लर्न अबाउट दैट. वी विल लर्न द यूज़ ऑफ विल हैव, shall have, where we should use will, where you should use shall, and let's see the video upon screen. Let's come to screen and understand. Once again, welcome to our 10 series revision of tense. In this playlist you will get only the video of tense, types of tense, as we have covered present tense, past tense, future tense, and in this video we will see the future tense properly. Today's topic will be the future tense, guys, and you will get to learn about future tense. So let's now understand about future tense and are the types of future tense, what is tense, types of tense, tense series, future tense. In this video will be there. So guys, what is future tense? Future tense, when a verb is used to show that an action, any action that will take place in the future. So any action which will take in place in the future is known as the future tense. कोई काम जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर टेंस कहलाता है. द फ्यूचर टेंस इज द वर्ब टेंस यूज्ड फॉर अ फ्यूचर एक्टिविटी. फ्यूचर एक्टिविटी के लिए जो हम भविष्य में करेंगे, फॉर एग्जांपल आई विल जंप इन द लेक, दिस इज फ्यूचर एक्टिविटी कि आप वो करोगे. एग्जांपल आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, ये फ्यूचर एक्टिविटी है. द फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड फॉर अ फ्यूचर एक्टिविटी और फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कुछ फ्यूचर में होगा. तो टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, जैसा कि आपने पास्ट टेंस में भी देखा था टाइप्स में, तो इसमें भी आप देखोगे टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस लाइक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फोर टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द types. After types we will understand about the future indefinite simple tense of future tense. So what is the future tense? Let's see. The simple future tense is used for action that will occur in the future. Any action that will occur in the future, like when a tense is used to show that action will take future, it is known as future tense. Like हिंदी में समझे तो हिंदी में आपका इस टेंस के हिंदी के वाक्य जो होंगे वो पता चलता है हमें भविष्य में कोई काम करेगा. इस टेंस में अंत जो होता है वाक्यों का वो होता है गा गे गी. सेंटेंस जो आपके खत्म हो रहे होंगे वो गागे गी से खत्म होंगे. जैसे कि तुम जाओगे, खाओगे, सोओगे, बैठोगे, पियोगे, नहाओगे. स्ट्रक्चर सिंपल का सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है ना. विल शॉल आ जाता है. विल और शॉल किसके साथ लगाना है? विल जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ लगे, लाइक ही, शी, इट और यू के साथ. एंड आई एंड वी के साथ आपको शॉल लगाना है, ये ध्यान रखना. आई शॉल, वी शॉल, ग्रामेटिकली ठीक है ज्यादातर, बट विल भी लगा रहता है. तो यूज विल विद एवरी सब्जेक्ट और पर्सन. स्पोकन में कभी कभी हर जगह आपको विल दिखेगा. नेगेटिव सेंटेंसेस में विल शॉल के बाद नॉट लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड, विल शॉल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखो डब्ल्यू एच वर्ड, विल शॉल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट. ठीक है गाइज, तो आपको यहाँ तक फ्यूचर इंडेफिनिट के सारे टाइप समझ आ गए हैं. एग्जाम्पल देख लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टाइप के सेंटेंसेस के. लाइक आई शॉल ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाऊंगा. वी शॉल डू मोर, लाइक यहाँ पे वी विल नहीं कह रहे, हम शॉल कह रहे हैं. तो आई और वी के साथ शॉल लगाना है फ्यूचर में. ये चीज क्लियर नहीं होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो ध्यान रखें इस चीज का. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखो सेंटेंस हिंदी में कैसे होंगे. अब मैं घर जाऊंगा, नाउ आई विल गो टू होम. आज वह स्कूल नहीं जाएगी. टुडे शी विल नॉट गो टू स्कूल. क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी? विल पुलिस रन आफ्टर द थीफ?
तो ये सारे सेंटेंसेस। ही विल मेक एन एरोप्लेन, वो एरोप्लेन बनाएगा। ही विल मेक एन एरोप्लेन। शी विल फॉल इन लव विथ अ प्रिंस, वो प्रिंस के साथ लव में फॉल करेंगे। इट विल मेक अ सेंस, ये सेंस बनाएगा। गागेगी से सेंटेंस एंड होते हैं। यू विल कंसिडर हिज रिक्वेस्ट समडे, तुम एक दिन उसका रिक्वेस्ट कंसिडर कर लोगे। सो दे विल नॉट मेक अप फॉर द डिस्ट्रक्शन, तो वो डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं मानेंगे। सो आई शॉल रीड अ नॉवल, मुझे नॉवल पढ़ना चाहिए। विल कार्स ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूचर, टेस्ला, जैसे कि आप सोच सकते हैं कि क्या कार जो है वो फ्यूचर में जो है कैसे एक उस पे रन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये सारे एग्जांपल्स आपने देख लिए। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं, विच इज अ सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, एंड लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। So meaning and structure of future tense. So when a tense is used to show that some action will be in progress, इसमें will be का यूज देखेंगे। will be, I will be doing, she will be doing, तो will be in progress in future। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहा होगा, पूरा नहीं होगा, मतलब कि वो चल ही रहा है, प्रोग्रेस में ही है कोई भविष्य में कार्य। ठीक है गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट विल शॉल बी आ जाएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि विल बी, शी विल बी डूइंग, आई विल बी लिसनिंग, शी विल बी डांसिंग, यू विल बी सिंगिंग। ये सभी टाइप के सेंटेंसेस जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव में देखेंगे सब्जेक्ट विल शॉल बी, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस में WH वर्ड, विल शॉल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस में WH वर्ड, विल शॉल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जांपल से कि क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइक आई विल बी प्लेइंग टेनिस एट 10 AM टुमारो, मैं कल 10 बजे टेनिस खेल रहा हूँगा। दे वॉन्ट बी वॉचिंग टीवी एट 9 PM टू नाइट, वो आज 9 बजे टीवी नहीं देख रहे होंगे। वॉट विल यू बी डूइंग एट 10 PM टू नाइट, आज तुम रात में 10 बजे क्या कर रहे होगे। वॉट विल यू बी डूइंग व्हेन आई अराइव, जब मैं आऊँगा तो तुम क्या कर रहे होगे। हमें कोई अंदाजा नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इसीलिए ही होता है गाइज कि आपको अंदाजा नहीं होता है, और इसमें कर रहे होंगे, जा रहे होंगे टाइप के सेंटेंसेस यूज होते हैं। ठीक है गाइज, तो आप देख सकते हो। तो जो भी काम आपका जा रहे होंगे, कर रहे होंगे से यूज होता है। शी विल नॉट बी स्लीपिंग व्हेन यू टेलीफोन हर, वो नहीं सो रही होगी, हम अंदाजा लगाते हैं। वी विल बी हैविंग डिनर व्हेन द फिल्म स्टार्ट्स, जब फिल्म स्टार्ट होगी हम डिनर कर रहे होंगे, डिनर कर रहे होंगे। टेक योर अम्ब्रेला इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रिटर्न, अपना छाता ले लो, जब तुम आ रहे होगे तो बारिश हो रही होगी, वह स्कूल जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है आपके।